So guys, आप देख सकते हैं now we are on my PDF form of Python basics. मैंने आपको पहले बोला था आज हम कवर करेंगे Python का basics. Now, अब क्या होता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट? ये हम बहुत बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट क्या होता है. जो हमारी लाइफ होती है, हमारी लाइफ भी या डेली लाइफ जो होती है वो इन तीन चीजों से कंसिस्ट होती है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ये जनरली क्या होता है, मशीन्स के अंदर वर्क करता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में वर्क करता है. ठीक है, एल्गोरिथम्स लेने के लिए. सो आपने कभी कोई क्ले टॉय, हैव यू एवर ट्राई टू मेक अ क्ले टॉय? सो इफ यू आर ट्राइंग टू मेक, so what do? The first step is that you take a raw clay. What do? You take a raw clay. Then after taking a raw clay, you mold the clay into a desired shape. So what do? I have the clay is my input here. Then what I do, I mold this. When I'm molding it, this is the process which is being done. Then what do, I get my output, which is the toys made with clay. So मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे पास इनपुट था क्ले को मैंने मोल्ड किया, वो मेरा चल रहा था प्रोसेस. जब मैं उसको एक शेप में, डिजायर्ड शेप में रख रही थी, जब सूख गया, पेंट कर दिया, देन I got this beautiful clay molds, clay toys, which is my output. ये मेरा output है. So this was the simple formation of a toy. ये क्या था, figure 1 था of a simple formation of a toy. A computer also works in the same manner. So एक जो कंप्यूटर होता है आपका, वो भी ऐसे ही मैनर में, in a very similar manner it works. वो क्या करते हैं, सबसे पहले it takes your input. What does it do? It takes your input, देन वो उसको प्रोसेस करता है, मतलब सोचता है. देन इट गिव्स अस आउटपुट इज आल्सो नोन एज द रिजल्ट. वो हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है. और ये कंप्यूटर ऐसे परफॉर्म करता है. और प्रोग्राम, अब प्रोग्राम क्या होता है, जस्ट लर्न दिस डेफिनेशन बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. अ प्रोग्राम इज अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस. सो जनरली व्हाट इज अ प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज गिवन टू अ कंप्यूटर to perform a designated task. कोई designated task, कोई particular task complete करने के लिए जब मैं कंप्यूटर को एक particular rules दे रही हूँ, उसे मैं program बोलती हूँ. जैसे let me give you an example of a program. Here I'm choosing 3 plus 4. Just see at the left side of your screen. Here I'm writing 3 plus 4. I'm for example giving to computer. What will be my answer? 7. So ये था मेरा program. ठीक है, this was my program when I'm giving a particular set of instructions for the computer to perform a designated task. ये था मेरा task. ठीक है, now without wasting any time, let us move to the next page. Now here आप देख सकते हैं that what are the features of Python. What are the features of Python? Guys, ये features of Python आपको बहुत easy हैं और please इसको अच्छे से याद करिएगा because this is very important side by side. Now a Python language is a high level programming language which uses variables without declaration. Now do you know what is the meaning of high level programming language? If you do know the meaning, please let me know in the comment box right now. Otherwise, high level programming language का मतलब क्या होता है? एक तो machine language होती है इधर, और इधर एक होती है high level programming language. So अभी मैं इधर बात कर रही हूँ high level programming language. What is high level programming language? High level programming language is the language which we understand. मशीन लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो आपको सीखनी पड़ती है बट कंप्यूटर को ऑलरेडी आती है. बट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर द कंप्यूटर बिकॉज वो पहले हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेता है, देन वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेट करता है. ठीक है, अब इधर देखते हैं what is the features of Python language. Number 1, it is simple and interactive. Now what do I mean by simple and interactive? मतलब बहुत ही simple है और interact करता है. It is not just mugging up the programs, it is learning the programs, understanding the concepts by heart.
Now it is platform independent. Do you know what is the meaning of platform independent? Platform independent का मतलब होता है कि वो एक कोई पर्टिकुलर जगह नहीं देखता, वो एक कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का बेस नहीं देखता. It could be used in Microsoft, it could be Microsoft के लैपटॉप में, मैक के लैपटॉप में. सी आई एम यूजिंग हेयर एप्पल का लैपटॉप. सो आई हैव आई वुड प्रेफर यू टू डू आइडियली. ये देखो, here I have ideally. Simply click on it. 3.8.2 shell. Download the Python 3.8.2 shell. If you want, I can give you the description in the link box below. Simply click on that website and just download it in your laptop. Tablet में भी हो सकता है, but you need to see whether your tablet can satisfy all those conditions, whether it is, you know, taking that particular program. केस सेंसिटिव और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट जस्ट टेल आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ अ थिंग नेम एज बाइट कोड. उसमें क्या होता है, एक बाइट कोड जैसी एक चीज होती है जो सबसे पहले एक पर्टिकुलर चीज में कन्वर्ट करती है, जो हर एक सॉफ्टवेयर के साथ, हर एक कंप्यूटर के साथ सेटिस्फाई करता है. Now it is a case sensitive. What do you mean by case sensitive? If you have done HTML in class 7th, you know कि जैसे मैं एक HTML का एक प्रोग्राम ले रही हूँ. I'm taking this B. इस B का मतलब क्या होता है, बोल्ड. और जब मैं ले रही हूँ ये B, इसका मतलब भी क्या होता है, बोल्ड. अल्टीमेटली द मीनिंग, चाहे मैं स्मॉल भी लूं या बिग भी लूं, द मीनिंग is coming as bold. But while using a Python program, जब मैं b ले रही हूं, then small b is not equals to, ये एक नॉट इक्वल्स टू का साइन होता है पाइथन में, बट इसमें ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू का लैपटॉप में साइन नहीं होता. सो आई एम यूजिंग नॉट इक्वल्स टू ऑफ पाइथन, नॉट इक्वल्स टू बिग बी, बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफर करते हैं. नाउ इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. मतलब कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, इंटरप्रेट करता है. इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स कि पहले क्या होता था, दैट just giving you a short story so that you understand what is generally object oriented. पहले क्या होता था कि जब इन लेट 90s, इन अर्ली 90s क्या होता था कि जब प्रोग्राम्स होते थे, आपके डेटा को, आपके ऑब्जेक्ट्स को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी. आप जो काम कर रहे हो, आपकी ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती थी. मतलब कि वो लीक हो जाता था, हैक हो जाता था प्रोग्राम इजीली. वट एवर यू आर राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट एंड यू हैव अ कॉम्पिटिशन विद अनदर रेस्टोरेंट. ठीक है, जो आपके बिल्कुल सामने है. अगर आप जिस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, अगर सामने वाले रेस्टोरेंट ने आपका कंप्यूटर हैक कर लिया, आपके प्रोग्राम्स हैक कर लिए, तो उसको पता लग जाएगा दैट हु ऑल योर कस्टमर्स, आप कितना पे कर रहे हो, व्हाट इज योर इनकम एंड ऑल. बट यू डोंट वांट योर इंफॉर्मेशन टू बी लीक्ड, so that is called as object oriented. Nowadays Python is being preferred by all of those क्योंकि C++, Java थोड़े मुश्किल होते हैं, बट पाइथन की लैंग्वेज याद करना इज वेरी वेरी इजी, विच यू विल सी मोर इन दिस चैप्टर. नाउ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मैंने बता दिया आपको. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ऑल्सो क्लियर. नाउ लेट अस कम टू दिस बॉक्स. All these features make Python a popular language. It was created by Gyuro van Rossum at Centrum Viscodica and Informatica CWI. Guys, इसमें मैं आपको कुछ समझाने वाला नहीं है, ये टू बी ऑनेस्ट सारा रट्टा मारने वाला है. ये पूरी लाइन, इट्स वेरी इजी. किसने क्रिएट किया, the name of the person and where it was created. It can be used for designing console apps. Now what is the meaning of console app? Console apps मतलब जिधर text based applications होते हैं, जैसे जिसमें C++, जावा. ठीक है, जैसे कि जब मैं बोल रही हूँ इंस्टाग्राम, सो इंस्टाग्राम इज अ टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन, और ये पाइथन प्रोग्राम यूज किया जाता है, डिजाइन किया जाता है ऐसे ही कंसोल एप्स को बनाने के लिए.
It is used for desk applications, web applications, mobile applications, बहुत सारी mobile applications, robotics, performing scientific computing, बहुत सारी चीजों में है. Now installing Python on a computer. So this I have told you what is a Python shell. Now ये देखिए, Google, Instagram, BitTorrent, Quora, YouTube, all these, Dropbox, YouTube, all these are made, all these are console apps. ये सारे क्या हैं? Your all these are simply the console apps. ये देख रहे हैं, Google, BitTorrent, Quora, these all are console apps, which means these are text based app. अगर आप बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है तो आप Instagram यूज करते होंगे, Google तो बच्चा बच्चा यूज करता है. अगर आपको 3 एग्जाम्पल्स भी याद करें ना, सो सिंपल आप एक YouTube, Google and Instagram ले लो, because everybody nowadays is using this. So yeah, ये let me show you in my screen also that here you can see ये मेरा एक Python program है. This Python 3.8.2, this is the shell. What do we call this? This is a shell. And you know what is all these things written? These things, ये क्या होते हैं, जब आप एक प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो, then you need certain instructions जो आपको C++ में शायद यूज करने हो, but Python में ये already built in होता है, and you don't have to use these. Simply write anything without writing. And जब ये आप 3 ये देख रहे हैं, इसका मतलब कि you can easy to go, you are writing in this line and you can just ये याद कर लो simple, ठीक है? You can easy to go, it is prompt and everything. Yeah. Now what are the working modes of Python? Generally working modes of Python कितना होता है? 2 working modes होते हैं. पहला होता है interactive mode and the second mode is a script mode. Now first we are talking about what is the interactive mode. This is very easy guys. In today's chapter I'm only going to cover till interactive mode, but in the next video I'm going to definitely cover the script mode as well. Yeah, so इधर interactive mode से शुरू करते हैं. In the interactive mode of Python, the interpreter executes the statement line by line. अब इंटरैक्टिव मोड लाना पाइथन में बहुत इजी होता है. जनरली वो क्या कह रहा है कि जो आपका पाइथन में इंटरैक्टिव मोड होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, मतलब एक ही लाइन में आपके आंसर्स देता है. ठीक है, जैसे आपने पहले कोई भी कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया, अभी सिर्फ न्यूमेरिक्स लिख रही हूँ बिकॉज वाइल राइटिंग योर स्ट्रिंग वैल्यूज, जब आप अल्फाबेट्स लिखते हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच वी आर आल्सो गोइंग टू कवर. कोई भी नंबर लिख लो आप, तो देख रहे हैं आप साइड बाय साइड में जैसे ही लिख रही हूँ मेरे वो नंबर्स आ रहे हैं. My numbers are just coming in a legacy. Yeah, these numbers are just coming in a legacy one by one. So these are called as interactive mode. जब आपने एक क्वेश्चन लिखा, when you're writing a statement and side by side only you are getting your answer. ठीक है, या मैं आपको एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टीचर है, फॉर एग्जांपल योर साइंस टीचर. आपकी साइंस टीचर क्या करती है, 2 मेथड्स होते हैं क्वेश्चन आंसर्स लिखवाने की, Q&A. या तो आप पहले क्वेश्चन लिखो देन यू आर आंसरिंग, क्वेश्चन लिखो देन यू आर आंसरिंग, या फिर राइट ऑल द क्वेश्चंस वन टाइम देन राइट ऑल द आंसर्स वन टाइम. दिस इज कॉल्ड एज इंटरैक्टिव मोड. जब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ देन मेरे को आंसर मिल रहा है, क्वेश्चन लिख रही हूँ आंसर मिल रहा है, दिस इज इंटरैक्टिव मोड. स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, जब मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ सारे और फिर एंड में मेरे को आंसर्स लिख रही हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट मोड. I'm not going to in much detail in the script because this is left for the next video. Yeah. So after the first statement is executed successfully, ये भी ध्यान रखना जब तक आपकी पहली स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ होगी, इफ देयर इज एन एरर, लेट मी शो यू एन एरर इन माय प्रोग्राम. इफ देयर इज एन एरर इन योर स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यूमेरिक डाल दिया, तो ये देखिए, it will show you an invalid syntax, it will show you that there is an error in this syntax. तब तक वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता है. ठीक है, it moves to the next statement.
जब पहली स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, जब आपको उसका आंसर मिल जाता है, तभी वो अगली स्टेटमेंट पे जाता है. It means that the interactive mode, the statements are executed line by line, giving the output in simultaneously or simultaneously. मतलब साइड बाय साइड आपको आंसर्स भी मिल रहे हैं आपके. Now ये तो था ओपन का. फिर जस्ट गिव इट अ क्वाइट लुक ग्लैंस. दिस इज, आप देख सकते हैं हियर इंटरैक्टिव मोड. जो भी लिख रहा है साइड बाय साइड यू आर आल्सो गेटिंग योर आंसर्स. इफ यू वांट वी कैन आल्सो परफॉर्म अ स्मॉल प्रोग्रामिंग. प्लीज कीप योर नोटबुक विद इन योर साइज. like whatever program I'm typing, you can even write it in your notebook just for a reference. ये देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नंबर लिख रही हूँ 67.89087. यही आ गया जो भी मैं नंबर्स लिख रही हूँ. या if I want I can even write an arithmetic expression. For example 100 1 111. नाउ मल्टीप्लिकेशन का साइन का तो कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा. 8 के ऊपर जो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन साइन. ठीक है. डिवाइड साइन खैर अभी छोड़ दो. सो 1 minus 0, 4 plus 1. Write any program and you are getting your answers at the time simultaneously. You're getting your answers simultaneously. Yes. Now ये तो एक क्विक ग्लैंस कि कैसे इंटरैक्टिव मोड में साइड बाय साइड आपके आंसर्स आते हैं. ठीक है. Now using the print function. Print function इधर देख लेते हैं एक बार पहले. The print function can be used in the interactive mode as well as the script mode. मतलब जो print function होता है आपका वो दोनों उसमें यूज होता है. इंटरैक्टिव मोड में भी यूज होता है और स्क्रिप्ट मोड में भी यूज होता है. It is used to display users defined message on screen. मतलब कि वो यूजर्स डिफाइंड मैसेज मतलब जो मैं चाहती हूँ वो स्क्रीन पे ले आता है as it is screen पे function. You can also show the result of an expression once it is processed. Okay, so guys, मेरे को आपको एक चीज बतानी है which you need to keep in mind. इधर example दे रही हूँ, then we are also going to come to the programs as well. Like जब आप लिखते हैं 6789, it will give you your result as 6789 only. But जब मैं इसको आप अगर प्रिंट फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं. लाइक जब आप लिखोगे प्रिंट, याद रखना दिस शुड बी स्मॉल. p शुड बी स्मॉल बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव. अगर p बड़ा हो गया देन गलती हो जाएगी. प्रिंट में लिख रही हूँ 6789, तो आंसर फिर क्या आ जाएगा मेरा 6789. ठीक है. This will be my answer. But when I'm writing a string value, for example good day, it will show me a big error. तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे print ब्रैकेट फिर एक सिंगल, या तो आप सिंगल डाल सकते हो और यू कैन पुट अ डबल quote and say good day, close double quotes, close the brackets, and this will be printed as it is, which would be good day. मैंने जी बड़ा कर दिया बट इधर जी भी आपका जो होगा छोटा होगा आपका डी. ठीक है जी. ओके. नाउ लेट अस सी आगे क्या करता है ये. या तो वी वर्क हियर कि आप एज इट इज आपका आ जाएगा गुड डे एंड इट इज नेसेसरी दैट यू आर putting or enclosing it within the brackets as well as within the double quotes. अगर आप ये नहीं करोगे आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू इन द प्रोग्राम की व्हाट विल बी द शॉर्टकमिंग्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आएंगे. या सो इधर से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे प्रिंट फंक्शन से इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज इसके बाद वी हैव आवर स्क्रिप्ट मोड. या इसके बाद वी हैव IDLE then script mode and these both of them are very interconnected with each other. एंड इसको कंप्लीट कर लेते हैं. जो भी चीजें आपके डबल कोट्स में इंक्लोज होती हैं व्हाट डू वी कॉल एज पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स कैन बी पास्ड विद इन द प्रिंट फंक्शन. ठीक है. जो भी चीजें आपकी इन डबल कोट्स में इंक्लोज होती हैं दैट इज कॉल्ड एज योर पैरामीटर्स और योर
guys यार, arguments, yeah. So जैसे कि देखिए, promptly pressing anything. अब मैं जब good day लिख रही हूँ, ठीक है, error. When I'm writing print, सिर्फ brackets रख रही हूँ मैं, good day, error, print, सिर्फ brackets भी नहीं रख रही मैं, see, it is showing me an error once again, ठीक है. So it is important that it is covered. अब मैं देखो बगैर कोई एरर की दिखाऊंगी आपको, डबल कोट्स का लगाया मैंने, ये देखिए, also showing here, put this, separators में ये लगाइए, ये flush is equals to false. This we are all going to do at the end of this chapter. Print, double quotes मैं generally use करती हूँ because people generally prefer double quotes. Print good day, double quotes closed, bracket closed, good day. So answer आ गया.